Morning students, today we are going to learn about the floral formula. So first of all, how to write the floral formula. So you have to learn that what kind of characters or what kind of structure that you add in this floral formula. ठीक है, what type of condition present that represent this floral formula. floral formula को लिखने से पहले आप कुछ conditions जो है वो पता होनी चाहिए. So what are these condition? कुछ structures हैं, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे first of all this is male and there is I wrote it here female. Okay, so the male and female, how it is write as for male sorry. Okay, for male it is going to be this structure, ठीक है, not this one. This one represent the male and here the female represent this kind of structure plus, ठीक है, circular then plus. Okay, for male this arrow and for female there is plus sign. And for the bisexual flower we can write it as there is arrow and there is plus sign. Okay, so this is bisexual flower. Okay, floral formula में अगर आपको आए कि bisexual flower is there, so you have to write this type of symbol. Next one is zygomorphic and actinomorphic flower. So zygomorphic flower में किस टाइप का सिंबल जो है zygomorphic flower को रिप्रेजेंट करता है, this one. Okay, and for the actinomorphic flower which has a radial symmetry, ठीक है, रेडियल सिमेट्री के लिए क्या करेंगे कि उसको जो है किसी भी टाइप से अगर हम कट करेंगे, किसी भी एंगल से अगर कट कर रहे हैं, सो वो जो है इक्वल जो है डिस्ट्रीब्यूशन शो करेगा. सो दैट इज एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर. ओके, नेक्स्ट वन इज फॉर द ब्रैक्टिएट एंड ई ब्रैक्टिएट. दोज फ्लावर विद ब्रैकेट्स आर नोन एज ब्रैक्टिएट फ्लावर एंड दोज विदाउट द ब्रैकेट्स आर नोन एज ई ब्रैक्टिएट फ्लावर. सो ब्रैक्टिएट फ्लावर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? फॉर द ब्रैक्टिएट फ्लावर BR. Okay, for the bracteate flower it is BR और E bracteate के लिए क्या आएगा? EBR. Okay, for E bracteate it is EBR and for bracteate there is BR. Okay, so next one is for the calyx. Calyx is the sepals. Okay, technical term for the sepal is calyx, you know about that, and calyx is represented by the symbol K. Okay, K से represent करते हैं हम calyx को. Okay, and when the calyx are fused, for example the calyx are 3 in number. Okay, they are 3 in number. How we represent the calyx with 3 in number? Suppose I write it here K and they are 3 in number, so I write in the fourth 3. Okay, if the calyx are fused then bracket is also there. Okay, when the calyx are fused then the brackets are there. When the condition where the calyx are not fused then only 3 is written, not bracket is there. Okay, bracket जो होगी वो सिर्फ fuse condition में होगी, which is called, the fuse condition is called gamosepalous. Okay, gamosepalous. When the sepal are fused, gamosepalous condition with brackets, fuse को show कर रहा है और free को जो है brackets नहीं लगेंगी. Okay, so this one is for the calyx, sepals and symbol is K. Another one is corolla. So what is corolla? Corollas are the petals. Okay, petals. So petals जो हैं इसको हम किस सिंबल से शो करेंगे? C. It is shown by this symbol C. Okay, C जो है रिप्रेजेंट करता है करोला को, पेटल्स को शो करता है. नाउ सेम कंडीशन, फ्यूज होगा तो ब्रैकेट, अगर पेटल्स फ्यूज नहीं होंगे देन हम सिंपली जो है करोला का नंबर लिखेंगे. फॉर एग्जाम्पल दे आर 5 in number. Okay, so I write it here as C5 if they are free, but if they are fused then this condition is write it as with the bracket. Okay, in the auxiliary condition
वैक्सिलरी कंडीशन जो है वो बहुत ही यूनिक है, ठीक है। वैक्सिलरी एस्टिवेशन, मैंने आपको इसके बारे में पहले ही बताया। वैक्सिलरी एस्टिवेशन में क्या होता है, वन लार्ज पेटल इज देयर, ओके, टू arms are there and the two internal one are fused, okay. So here this condition, how this type of arrangement of petal represent, पेटल्स क्या हैं, कोरोला है, तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इस सिचुएशन को, अब कैसे लिखेंगे। अब हम सिंपली यहाँ पे अगर 1 2 3 4 5, यहाँ पे भी 5 पेटल्स जो है वो प्रेजेंट है, सो हम कैसे लिखेंगे इस कंडीशन को। सो corolla, C for corolla, and then one large petal is there, plus two petals, these petals 2 plus 2 petals जो कि फ्यूज हो चुकी हैं। सो फ्यूज के लिए क्या करते हैं, ब्रैकेट यूज करते हैं, ओके। एंड दिस वन इज ऑल्सो कॉल्ड कील, ठीक है। ये प्रेजेंट होती है पी के केस में, ये इस टाइप की एस्टिवेशन प्रेजेंट होती है। सो हम कैसे लिखेंगे, एस्टिवेशन में वैक्सिलरी एस्टिवेशन है तो हम कैसे लिखेंगे, कोरोला की कंडीशन 1 + 2 + 2 इन द ब्रैकेट, ओके। सो दिस वन इज फॉर द वैक्सिलरी टाइप ऑफ एस्टिवेशन। अगर सिंपल एस्टिवेशन है तो हम जो है 5 विथ फ्यूज और फ्री, ओके। Then for the androecium, androecium is the group of stamen and it is represented by the symbol A, okay. So symbol A, and when the stamens are fused, then simply write 5 in the bracket and they are free, then simple 5, okay. Here next is for the gynoecium, ठीक है। नेक्स्ट वन इज फॉर द gynoecium। सो gynoecium में क्या होगा, G, ओके। सिंपल G रिप्रेजेंट द gynoecium, ओके। एंड नंबर फ्यूज्ड या फ्री 2, अगर ऐसे लिखा होगा मीन्स दे आर फ्री। इफ दे आर रिटन इट एज इन दिस कंडीशन फ्यूज्ड, ठीक है। सो फ्यूज gynoecium इज कॉल्ड, yes it is called syncarpus and free gynoecium is called apocarpus। ये मैंने आपको प्रीवियसली वीडियो में बता दिया था, ठीक है। सो फ्यूज कंडीशन में ब्रैकेट विदाउट फ्यूजन और फ्री कंडीशन इज रिटर्न इट एज इन दिस, ठीक है, ऐसे लिखा जाता है। देन अबाउट द ओवरी कंडीशन, ठीक है। अब gynoecium में ओवरी कैसी है, सुपीरियर, इंफीरियर, ठीक है, किस टाइप से प्रेजेंट है। तो अगर हमने सुपीरियर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, सुपीरियर, सो नीचे लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि फ्लोरल पार्ट जो है वो यहाँ से अराइज कर रहे हैं। और इंफीरियर में क्या करेंगे, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे gynoecium को, ठीक है, इंफीरियर। gynoecium में जो सिंबल है, ठीक है, एक लाइन जो लगाई है हमने, इंफीरियर में अपवर्ड डायरेक्शन और सुपीरियर में डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी, ठीक है। सो दिस वन इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द gynoecium, हाउ द gynoecium इज रिटन इन द फ्लोरल फॉर्मूला। नेक्स्ट वन इज अबाउट द पेरियंथ। पेरियंथ इज द ग्रुप ऑफ टैपल्स एंड व्हाट इज टैपल, टैपल इज द structure which represent and petals and sepals, okay. When the petals and sepals cannot differentiate it, so they are termed as tepals, okay, they are termed as tepals and group of tepal is called perianth, ठीक है। group of tepal is called perianth। so perianth को कैसे लिखेंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, by the P, okay। so it is write it as 3 + 3 पेरियंथ, ठीक है। तो अगर एक और कंडीशन है, अगर कंडीशन है मान लीजिए एपीपेटलस, ठीक है। एपीपेटलस में क्या है, जो स्टेमन है दे आर अटैच्ड विद द पेटल्स, ठीक है। सो हम कैसे लिखेंगे, पेटल्स जो है वो है कोरोला C, ओके। और स्टेमन को किससे रिप्रेजेंट करें, एंड्रोशियम से, एंड्रोशियम A। तो ये दोनों जो है आपस में कनेक्टेड है, ठीक है। और एक और कंडीशन है एपीफिलस। एपीफिलस कंडीशन जो है उसमें क्या होगा, एपीफिलस कंडीशन में जो कोरोला है, सॉरी यहाँ पे क्या आएगी, पेरियंथ आएगी,
ठीक है, यहाँ पे कोरोला नहीं आएगा क्योंकि पेटल्स और टैपल्स जो हैं वो डिफ्रेंशिएटेड नहीं है, सो दे टर्म्ड एज पेरियंथ। ठीक है, तो पेरियंथ जो है वो एंड्रोशियम के साथ जो है, एंड्रोशियम जो पेरियंथ के साथ अटैच है। ठीक है, तो इस तरह से लिखेंगे। ओके, इस तरह से लिखेंगे। और फिर कोरोला कितने हो गए, 5 मान लीजिए, एंड्रोशियम कितने हो गए, 2। ठीक है, तो ऐसे नंबर जो है वो नीचे ही लिखेंगे, बट उनका कनेक्शन शो करेंगे दैट दे आर एपिपेटलस, शोइंग द कंडीशन, दिस कंडीशन शोइंग द एपिपेटलस कंडीशन एंड दिस कंडीशन शोइंग द एपिफिलस कंडीशन। ओके, सो दीज आर सम ऑफ द सिंबल्स which are used in the floral formula. Next, some of the families like this one. So these are some of the family which I write the floral formula for. First one is Fabaceae family. ठीक है, जिसमें pulses आती हैं, gram, अरहर and all the edible oils belongs to this family. Okay, so first one here I write it as percentage, means it is the zygomorphic flower. Then this condition shows it is the bisexual flower. K for calyx, and they are 5 in number which are fused. Corolla is in the condition of 1 plus 2 plus 2 fused, means they are in vexillary estivation. ठीक है, इस टाइप की estivation जो है वो vexillary estivation है. Then A 9 plus 1. ठीक है, यहाँ पे मैंने ये क्यों लिखा हुआ है, 9 plus 1 क्यों लिखा हुआ है, दे आर 10 इन नंबर। तो यहाँ पे कुछ जो पर्सन है वो इसको 5 plus 5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, एंड्रोशियम को 5 plus 5 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 9 plus 1 क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि डायडेल्फस कंडीशन है, और डायडेल्फस कंडीशन में आपको पता है कि पूरा का पूरा एक ग्रुप जो है वो साथ में फ्यूज होता है और एक जो स्टेमन है वो अलग से निकला होता है। ठीक है, सो 9 दे आर फ्यूज्ड प्लस 1। ठीक है, सो एंड्रोशियम जो है जिसमें 10 टोटल एंड्रोशियम प्रेजेंट है, बट 9 आर फ्यूज प्लस 1 इज फ्री। देन गाइनोशियम इट इज सुपीरियर। ठीक है, नीचे लगा हुआ है सुपीरियर एंड 1 इन नंबर। अदर फैमिली सोलेनेसी फैमिली, इट इज ऑल्सो कॉल्ड पोटैटो फैमिली। स्पाइस chili belongs to this family. Tobacco is also the member of Solanaceae. So I write it as the circle with plus sign means actinomorphic flower having radial symmetry. The bisexual flower, calyx are 5 in number, fused, plus corolla and the androecium they are interconnected. ठीक है, एपीपेटलस कंडीशन को शो कर रहा है। corolla 5 in number, ठीक है, androecium then gynoecium, superior ovary they are 2 in number. Okay, so for the Liliaceae family, also called lily family, aloe vera is belongs to this family, colchicine and tulip is also belongs to this family. So here the formula, floral formula for this family is bracteate, ब्रैकेट्स प्रेजेंट है। ठीक है, बाकी में मैंने कहीं पे ब्रैकेट या ई ब्रैकेट नहीं लिखा, सो इट डजंट मीन कि वहाँ पे जो है ब्रैकेट प्रेजेंट होगी। यहाँ पे कुछ नहीं लिखा मीन्स ई ब्रैकेट है, यहाँ पे भी कुछ नहीं लिखा मीन्स ई ब्रैकेट है। ठीक है, अगर ब्रैकेट है तो आप सिंपल बी आर लिख सकते हो, और अगर नहीं है तो ई ब्रैकेट लिख दीजिए, और अगर कुछ नहीं लिखना है तो भी चलेगा। सो नेक्स्ट वन है zygomorphic flower, bisexual flower, then perianth is there. There is no calyx and no corolla. Perianth is there क्योंकि calyx और corolla दोनों fuse हो चुके हैं, they form the perianth. 3 plus 3 androecium, 3 plus 3 gynoecium superior and 3 they are fused. ठीक है, so these are the some of the family which have floral formula जो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, Fabaceae, Solanaceae important है और Liliaceae आपकी बुक में गिवन है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, राइट द फ्लोरल फॉर्मूला। ठीक है, विथ फॉलोइंग कंडीशंस, ये आपको मैंने कंडीशंस दी हुई है, आपने इनका फ्लोरल फॉर्मूला लिखना है। ठीक है, सो फर्स्ट इज एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर का सिंबल बताना है आपने। बाइसेक्सुअल फ्लावर है, कैलिक्स आर 4 इन नंबर। मैंने नहीं शो किया है कि फ्यूज है, मतलब ये फ्री है। ठीक है, अगर फ्यूजन में बता देती, फ्यूज लिख देती साथ में, तो आपने उनको ब्रैकेट लगा देनी थी। ठीक है, बट दे आर फ्री इन नंबर, 3 and 4 in number. Corolla 4 and fused, यहाँ पे ब्रैकेट शो होगी। Androecium 6 in number. Gynoecium they are 2 fused and superior. ठीक है, so this question is for you. So students, today we study about the floral formula. ठीक है, so next एक और जो क्वेश्चन है वो है कि कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इस सिचुएशन को। ओके, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए सेपल जो हैं वो 5 दिए गए हैं। ठीक है, सेपल जो हैं वो 5 दिए गए हैं।
ठीक है। सो सेपल्स आर रिप्रेजेंट बाय दिस ट्रायंगल। ओके, सो यहाँ पे ट्रायंगल सा स्ट्रक्चर जो है वो शो करेगा, दे आर सेपल्स। ओके, जो नेक्स्ट है दैट इज द पेटल्स। ठीक है, पेटल्स की कंडीशन कैसे शो होगी? पेटल्स की कंडीशन जो है उसमें कोई ट्रायंगल सर्कल नहीं होगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं कौन सी एस्टिवेशन ड्रॉ कर रही हूँ? यहाँ पे मैं एस्टिवेशन ड्रॉ कर रही हूँ वैक्सिलरी। ठीक है, वैक्सिलरी टाइप ऑफ एस्टिवेशन। अब इसमें एंड्रोशियम मैंने बना दिए हैं। ठीक है, एंड्रोशियम एंड दिस वन सेपरेट। क्यों? क्योंकि 9 जो है 9+1 कंडीशन को देखिए, 9 फ्यूज्ड है और +1 फ्री है। ठीक है, और बीच में जो है वो गाइनोशियम। सो दिस वन इज द फ्लोरल डायग्राम कि कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जो फ्लोरल फॉर्मूला मैंने आपको बताया, तो उसको हम फ्लोरल डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, so this is all for today. Thank you so much for watching the video.